Hi guys, myself Lakshmi, and today I am going to start with a new topic, that is enzyme kinetics. Enzyme kinetics is the quantitative study of enzyme catalysis. So basically what is quantitative? Quantitative means I need the number, the quantity कितनी है, ठीक है. तो नंबर्स के साथ हम डील करेंगे, इसमें हम उसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है. बेसिकली तो kinetic studies measure reaction rate and affinity of enzymes for substrate and inhibitors. Okay, what is inhibitors? We are going to know about inhibitors in my next videos. Okay, so for example, मैंने example ये है कि in a chemical reaction of form A plus B, that is equal to P, where A and B are the reactants and P is the product. Basically एक chemical reaction है जिसमें A, B आपके reactants हैं और P product है. A, B reactants है मतलब they are used in the chemical reaction and P is the product, P is produced. ठीक है. Since A and B both are used in the reaction, so we are going to use negative sign here while writing the equation to know the rate. ठीक है. बेसिकली अगर हमें रेट इनका निकालना है कि भाई इनकी वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी के साथ, किस रेट के साथ ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हमें क्या करना है. बेसिकली वी हैव टू राइट दैट रेट. देखिए बात ये है कि रेट की जो रेट होती है रिएक्शन की, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं in terms of either the rate of disappearance of both of like disappearance of A as well as disappearance of the reactant B. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन ए के बारे में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के बारे में, सो इन दैट कंडीशन ए इज माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, where delta symbolizes change, A is the concentration of reactant A in moles per liter, and T is the time. Similarly, the rate of disappearance of B is delta B upon delta T, and the rate of appearance of P is delta P upon delta T. Since both reactant A and B are used up in the reaction, that's why we are using negative signs. Okay. ओके सो अब हम इस रेट की रिएक्शन को बेसिकली इस रेट की इक्वेशन को, जो ये रेट का इक्वेशन आया है आपका, रेट इज इक्वल दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं. दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप देखिए ये स्लाइड में मैंने नेक्स्ट स्लाइड चेंज की है. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स प्रोडक्ट ऑफ बी टू द पावर वाई. So basically A and B are the reactants and X and Y are the appropriate powers. So the rate of reaction at a given time is proportional to the product of the concentration of reactant raised to the appropriate power. Okay. कि अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन हटा देते हैं तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी. ठीक है. So what is K? K is the rate constant. X and Y are the exponents that must be determined experimentally. Okay. The values of experiment are generally whole numbers like 1, 2, okay, like that. The values of exponents are also related to the numbers of molecule involved in the reaction. Okay. One more important thing, most important thing. ठीक है. जो ये आपका रेट है, इस रेट से हम बेसिकली हम रेट निकाल रहे हैं, इस रेट से हम आपकी ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर जान सकते हैं. इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है. अगर हम दो रिएक्टेंट्स लेते हैं ए और बी, इन दैट केस इट विल बी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट. ओके. पर अगर हम बात करते हैं के रेट इज इक्वल टू के a to power 1. So 1 basically symbolizes that the rate of the reaction, that the overall order of the reaction will be first order reaction, is first order. The exponent of the concentration of A is 1, then the reaction is first order reaction. Got it? चलिए. Similarly अगर हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जीरो रिएक्शन में पॉसिबिलिटी क्या होती है, जो एक्सपोनेंट है
रेट इक्वेशन में, ठीक है, उसकी वैल्यू या तो इक्वल टू, देयर इज पॉसिबिलिटी मे बी इक्वल टू 0. सो इन दैट केस रेट विल बी इक्वल टू के ए टू पावर 0. अगर किसी का पावर 0 हो जाता है दैट मीन्स दैट देयर इज 1. सो आपका रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट. इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन its rate is equal to rate constant and rate does not depend on the concentration of reactants. reactant के concentration पे depend नहीं करती. okay, got it. okay, next topic जो है वो बहुत important है और हम start करने वाले हैं Michaelis Menten equation. ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली दो साइंटिस्ट है, माइकलिस एंड मेंटन. ठीक है, इसका जो भी आपका अब जो भी हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपका पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक उसी पे ही है. ठीक है, उसी उसी ये वही उसका बेसिस है. तो माइकलिस मेंटन दो साइंटिस्ट थे जो कि आपका रिलेशनशिप इन स्टडी कर रहे थे रिएक्शन वेलोसिटी का एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का. ठीक है, सो बेसिकली दे स्टडीड द रिएक्शन इन विच द एंजाइम इंटरवेज इन इनवर्टेज हाइड्रोलाइजेस सुक्रोज. ठीक है, तो उन्होंने कुछ एजम्पशन लिया था. उनका पहला एजम्पशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन ये था कि जो भी वो रिएक्शन ले रहे हैं उस रिएक्शन में आपका सबस्ट्रेट का जो वैल्यू है, सबस्ट्रेट का जो वैल्यू है दैट इज मोर देन वैल्यू ऑफ एंजाइम. ठीक है, सबस्ट्रेट का अमाउंट आपके एंजाइम के अमाउंट से ऑलरेडी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, कंपैरिजन में. ओके, ये पहला एजम्पशन था. सेकेंड एजम्पशन जो उन्होंने बेसिकली हमें फॉर्मुलेट करने के लिए जो इक्वेशन ये आई है E + S, ये क्या है. ओके, अब हम समझते हैं क्या है. They assumed, Michaelis and Menten, they assumed that enzyme E first combined with substrate S to form the enzyme substrate complex. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि आपका अगर ये मान लीजिए, आपको मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी आपका एंजाइम होता है वो बेसिक मतलब हाईली स्पेसिफिक होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होता है. तो अगर हाईली स्पेसिफिक है तो वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही जाके बाइंड करेगा. ठीक है, आपका जो बाइंडिंग होगा वो बहुत स्पेसिफिक होता है. ठीक है, तो और जो सबस्ट्रेट होता है वो आपके एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है. राइट, एक्टिव साइट के बाइंड करने के बाद तभी आपका ये एंजाइम है, अगर हम लेते हैं इसको एंजाइम लेते हैं. ठीक है, और इसको अगर हम सबस्ट्रेट लेते हैं तो इन दोनों का बाइंडिंग के बाद ही आपका ES फॉर्मेशन होता है. राइट, गॉट इट. ठीक है, चलिए, तो बेसिकली क्या एजम्पशन ये था कि एंजाइम लिया हमने, सबस्ट्रेट लिया, उसके बाद आपका सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लेटर ब्रेक डाउन होकर आपका सेकेंड स्टेप में फ्री एंजाइम निकल जाता है और आपका प्रोडक्ट निकल जाता है. राइट, ओके. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डबल एरोज हैं, एक सिंगल एरो है. डबल एरो मीन्स इन दोनों के बीच में जो आपका ES बनने वाला जो ES बनने वाला आपका स्टेप है वो स्टेप आपका रिवर्सिबल स्टेप है. ठीक है, एंड वेयर एज जो प्रोडक्ट वाला स्टेप है दैट इज इरिवर्सिबल स्टेप. ठीक है, तो K1 K2 K1 K1 K2 K-1 ये जितने भी ये सब है, ये सब रेट कांस्टेंट है. ठीक है, रेट कांस्टेंट का क्या काम है, आगे हम कैसे यूज़ करते हैं तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है, ओके. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रेट जो होता है आपका, हम अब अभी तक हम स्टार्टिंग से अभी रेट की ही बात कर रहे हैं. ये बेसिकली रिलेशनशिप है रेट का और सबस्ट्रेट का, उनका इंटर रिलेशनशिप है. ठीक है, यही हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं. तो रेट डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन S. ओके, ठीक है, एट रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल रेट V इंक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. इसका मतलब ये है जैसे कि हमने ग्राफ प्लॉट किया गया है, एक तरफ हमने आपका इस ग्राफ में एक तरफ हमने आपका रेट लिया है. ठीक है, एक तरफ हमने दूसरी तरफ हमने सबस्ट्रेट लिया है. ठीक है, तो यही है. चलिए सॉरी, आपका जो ग्राफ फॉर्म होता है दैट इज हाइपरबॉलिक इन नेचर.
दिस ग्राफ इज हाइपरबॉलिक इन नेचर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बोलना था आपको वो ये है कि आपका रेट जो है वो आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ओके, आपका एक एक पॉइंट आएगा जब आपका रेट कंसंट्रेशन के साथ और इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। एक टाइम तक वो इंक्रीज करेगा लीनियरली, पर उस एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। ओके, द रिएक्शन रीचेज मैक्स वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम रेट जो होता है वो तब होता है जब आपका सबस्ट्रेट आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो होता है, दिस इज वी मैक्स, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि वी मैक्स क्या है। हमें पता चल चुका है कि वी मैक्स क्या है, राइट, ठीक है। तो वी मैक्स वो मैक्स वेलोसिटी है जो इंक्रीज करती है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। वी मैक्स का जो हाफ होता है दैट इज, ओके सॉरी, चलिए हम आगे चलते हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम बात कर, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इस इक्वेशन में कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कुछ टर्मिनोलॉजीज पे, जैसे कि वी मैक्स क्या है, के एम क्या है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है, ठीक है। आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो के एम एम बेसिकली माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट था, जैसे हमारा पहले रेट कांस्टेंट था, हमने पहले पढ़ा पहले की स्लाइड्स में, वैसे के एम इज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट which shows the concentration of the substrate with reaction velocity is equal to 1/2 of the maximum velocity for the reaction, ठीक है। Lower the value of Km describes the greater affinity for of the enzyme for the reaction, ठीक है। तो Km बेसिकली क्या है, आपका रेशियोज है डिफरेंट रेट कांस्टेंट का, ठीक है। Km रेशियो होता है डिफरेंट रेट कांस्टेंट का आपका, ओके। तो आपका जो Km है, ठीक है, ये देखिए आप, यस, ओके सॉरी मैंने स्लाइड पीछे कर दिया था। तो Km जो होता है वो आपका माइकलिस कांस्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज Km इज एक्सप्रेस्ड एज मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर लीटर, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज lower value of Km describes the greater affinity of enzyme for the substrate, got it, ठीक है। अब हम ये भी जान चुके हैं कि के एम बेसिकली आपका एक रेशियो होता है रेट कांस्टेंट्स का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मैक्लिस मेंटेन की इक्वेशन की तरफ। मैक्लिस मेंटेन पुट फॉरवर्ड अ मैथमेटिकल इक्वेशन टू एस्टेब्लिश द मैथमेटिकल रिलेशनशिप अमॉन्ग क्वांटिटीज, जैसे कि ई एस आपका एंजाइम्स एस वी मैक्स एंड के एम, ठीक है। सो आपका यहाँ पे ये है आपका मैक्लिस मेंटेन इक्वेशन। इस इक्वेशन कैसा ये डराइव हुआ, ये आया, अगर आप चाहें तो बढ़ सकते हैं, पर वो आपके सिलेबस में अभी इतना है नहीं, ठीक है। जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स है, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन गो फॉर इट, पर इतना कहीं पूछता नहीं है डेरिवेशन, ठीक है। किसी भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, अगर आप आगे हाई क्लासेस, मतलब अगर आगे हाई स्टडीज़ करेंगे तो आपसे पूछा जाता है। तो व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Km, ये कुछ पॉइंट्स है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Km देन V इज इक्वल टू V मैक्स अपॉन में 2, ठीक है। जब आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km की इक्वल होता है तो V इज इक्वल टू V मैक्स अपॉन में 2, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि आपका इस ग्राफ में ये जो वी मैक्स अपॉन में 2 वाला कंडीशन है, इस कंडीशन में आपका जो के है दैट इज इक्वल टू योर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एस इज इफ एस इज मच लेस देन के एम देन वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। व्हेन एस इज मच ग्रेटर देन के एम देन वी इज इक्वल टू वी मैक्स, गॉट इट, चलिए।